Good morning, dear children. Welcome back in your value education subject. Today we will study chapter 5 Help Others. So, children, firstly, observe the picture carefully and take one which shows the act of helping other, and also write 2 lines about helpfulness. Here is the pictures. Which picture is showing that helping other? कौन से पिक्चर में आपको दिख रहा है जो हेल्प कर रहा है? Here this boy, he is giving some food items to beggar. So this is right picture, and he is ignoring him and going on the way. So this is wrong. The lines about helpfulness, try to write yourself. Here I have given some lines. You can take help from it. Honeybees are the most helpful insects. In your EVS subject, I have taught you about the honeybees, how they all are helping to each other. And here is helpful word. In this way, you have to form a sentence in there. Helpful, help, इस टाइप की जो वर्ड है वो उसमें ऐड होना चाहिए. स्कूल प्ले एन इसेंशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव एबिलिटी. ये है ना हेल्पफुल की बात हो रही है ना, हेल्पफुलनेस की, कि स्कूल जो है वो बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है आपके फ्यूचर को शेप करने में. तो आपको उसका जो बेनिफिट है वो लेना चाहिए, और स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव एबिलिटी को भी इम्प्रूव करने में स्कूल हेल्प करता है. इज़न्ट इट? सो helpfulness sentence should be like this. Let us read a story of a boy who thought himself to be the happiest boy of the world, but later he realized that only wealth cannot make one happy unless one uses to help others. इस स्टोरी में हम लोग एक बॉय के बारे में पढ़ेंगे जो अपने आप को ये सोचता था कि वो हैप्पीएस्ट बॉय है, पूरे वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट बॉय है, और वो रिच था, उसे सारी चीज़ें मिल जाती थीं, तो इसलिए वो अपने आप को ऐसा समझता था कि मैं हैप्पीएस्ट बॉय हूँ, मैं सबसे खुश लड़का हूँ, और वो किसी की हेल्प भी नहीं करता था. नाउ लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टोरी, हेल्प अदर्स. A true mirror. Once there lived a boy named Kabir. He was very rich. He had everything that a boy could ever wish to have, but he had never helped anyone in any way. As I told you, he had never helped anyone. This boy Kabir, ये बहुत ही रिच था और ये कभी किसी की हेल्प नहीं करता था. रिच होने के बावजूद इसके पास सभी कुछ थी, पर ये किसी की हेल्प नहीं करता था. वन डे कबीर सॉ एन ओल्ड मिरर इन अ शॉप. इट fascinated him so much that he persuaded his parents to buy it for him. Persuaded, that means to make somebody to do something by giving him her good reason. means persuaded का मतलब बार बार अपने पेरेंट्स को समझा रहा था ये मिरर लेने के लिए कि आप ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है. वो एक तरह से जैसे जिद करना है ना. सो वो उसके गुड रीजंस बता रहा था कि ये बहुत अच्छा है, इसे ले कर के चलिए, और उसे ख़रीदने की जिद कर रहा था. So after to that, his parent agreed. When the shopkeeper delivered mirror, Kabir insisted that it should be placed in his room. उसने insist किया कि जो मिरर है उसे प्लेस कहाँ किया जाए? उसके रूम में, कबीर के रूम में प्लेस किया जाए. He could hardly wait to see his reflection in the mirror. But what did he see?
While Kabir was smiling, his reflection was not. He found it strange. He tried again. He made funny faces, but its reflection did not smile. It persisted to be sad. So, children, when Kabir was seeing his face in mirror, तो उस मिरर में उसका रिफ्लेक्शन कैसा आता था? सैड आता था। हमेशा उस मिरर में उसका फेस का जो इमेज बनता था वो सैड बनता था। वो हंसता था तो भी उसका रिफ्लेक्शन सैड दिखाई देता था। वो फ़नी फेसेस बनाता था तो भी सैड दिखाई देता था। सो persisted, that means to continue doing something, even though other people say that you are wrong or that you cannot do it. वो बार बार उस चीज़ को कर रहा था, बार बार वैसे ही कर रहा था और घर में अपने पेरेंट्स को बता भी रहा था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इस तरह से उस मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। पेरेंट्स ये बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यू आर रॉन्ग। तो after some days, Kabir thought for a moment and then went off to buy sweets. He came home happy, having bought the most expensive sweets. He stood in front of the mirror and yet again his reflection did not smile. This happened every single day for the whole week. This reflection just would not smile. Fed up, Kabir put the mirror in corner. और इस तरह से क्या हुआ, फुल वीक बीत गया, एक दिन करके बीत गया। और वो जब भी खुश भी रहता था तो भी उसका जो रिफ्लेक्शन है मिरर में वो बिल्कुल भी वैसा नहीं बनता था, वो सैड ही बनता था। कबीर ने उस मिरर को उठा करके कॉर्नर में रख दिया। वो फिर अब उसका जो क्रेज़ है उस मिरर के प्रति वो ख़त्म हो गया और उसने मिरर को उठा करके कॉर्नर में रख दिया। ओह व्हाट अ टेरेबल मिरर, इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ मिरर विथ सच अ डिफेक्ट, एक्सक्लेम्ड कबीर। उसने बोला कि कितना ये टेरेबल मिरर है, अजीब मिरर है, मैंने ऐसा मिरर पहले कभी भी नहीं देखा था, इस मिरर में ही डिफेक्ट है। ऐसा सोच करके उसने मिरर को कॉर्नर में रख करके छोड़ दिया और भूल गया। Many days passed. One afternoon, Kabir went out to play. On his way to the playground, he saw a small boy crying loudly. Kabir went up to him and asked, "Why are you crying? What happened?" काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन कबीर बाहर गया, खेलने के लिए बाहर गया और उसने देखा कि एक स्मॉल बॉय काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। कबीर उसके पास गया और उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? द बॉय लुक्ड स्कैर्ड एंड लोनली. ही रिप्लाइड, द रोड वॉज सो क्राउडेड एंड आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स. इसके पेरेंट्स से ये अलग हो गया है और रोड इसे रोड क्रॉस करना है, ये रोड क्रॉस करना चाहता है बट ये अफ्रेड है, डर रहा है कि मैं रोड कैसे क्रॉस करूं. देन आफ्टर कबीर लुक्ड एट द बॉय एंड फेल्ट सैड फॉर हिम. He tried to calm the boy and said, "Don't worry, I will help you find your parents. Let's search for them." इसने कबीर ने बोला इसको बॉय को कि ठीक है, तुम रो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में भी हेल्प करूँगा. He cheered up the boy and bought him sweets and a toy. उसने बॉय को चीयर किया, उसे समझाया और उसके लिए कुछ स्वीट्स और टॉय भी लेकर आया. आफ्टर मच सर्चिंग दे फाइनली फाउंड द बॉयज़ पेरेंट्स. द बॉय एंड हिज पेरेंट्स थैंक्ड कबीर फॉर हिज हेल्प. कबीर फेल्ट हैप्पी एंड रिटर्न्ड होम. इस तरह से काफ़ी सर्च करने के बाद उसने इस स्मॉल बॉय के पेरेंट्स को ढूंढ निकाला और उसके बाद वो जो स्मॉल बॉय था और उसके पेरेंट्स थे उन लोगों ने कबीर को थैंक यू बोला. एंड आफ्टर टू दैट कबीर वॉज वेरी हैप्पी फीलिंग एंड रिटर्न्ड होम. What will happen after to it? Just think about it. I will
tell you and teach you in next class.